Topic is electric field intensity due to a uniformly charged ring or a circular loop. This is a very important topic for board's point of view also, from board's point of view also. Now, what is given to you? The uniformly charged ring is given to you. That means you have a ring. This is a ring with center O and A is the radius, and it is a uniformly charged ring. That means the charge is distributed uniformly on its surface along its length. We want to find the electric field intensity because of this ring. Let P is a point where you want to find out the electric field intensity. Now electric field intensity at point P you want to find out. First we will take a small element dl along a length. This is a length. Take a small element dl. What is the distance of point P from O? Let it be x. Let it be x from the center. Now what is the distance for point P from the small element dl? This is suppose r. So what is the electric field intensity at point P due to a small element dl is dE vector 1 by 4 pi epsilon naught charge. Suppose charge on the small element is dq, charge upon r square. Now as charge is distributed over a length, so what is lambda? Lambda is dq by dl by the linear charge density definition. So dq is lambda into dl. Put the value of dq is lambda into dl. So what is dE vector? 1 by 4 pi epsilon naught lambda dl upon r square. Now see this. What is the direction of electric field over here? This is, I told you, this is a positive charge, and charge, this is also uniformly charged distribution is about positive q charge, and this is q naught. Where you want to find out the electric field intensity, there you will keep a positive test charge, and this is the positively charged uniform ring. What will happen between these 2 points? They will repel. They will simply repel. So what is the direction of electric field? Outside. dV vector is outside along O, L, whatever name you want to give. Now before doing this we should know the value of r square. See this triangle. Can you find the r square from here by the using Pythagoras theorem? R square is equal to x square plus a square. Put the value of r square over here. So it is 1 by 4 pi epsilon naught lambda dl upon x square plus r square. Now do one thing. Resolve dE into two components. See here. This is angle theta. This is also theta. Resolve D into two components. One is this, another is this. What is this? This is one which is close to the D, close to the theta. Then it is dE cos theta. And what is another component? dE sin theta. I have resolved dE. This is angle theta. This is also angle theta, vertical opposite angles. So if this is theta, then the component of dE along this is dE cos theta, and this is dE sin theta. Okay. If I'll take some another element dl dash this side, what is in that case? What is the electric field over here? Here it will be dE dash. Resolve it into two components again. This is again dE dash cos theta, and this is dE dash sin theta. Now dE dash and dE are equal and opposite, so they will cancel out each other. That means the component sin theta will be cancelled out due to the another element which is in the opposite side of the ring. The component dE sin theta will be cancelled out. ये component dE sin theta cancel out हो जाएगा. देखो आपने dE को दो components में resolve किया, dE cos theta, dE sin theta, ये theta था. मान लो आपने को दूसरा एलिमेंट लिया इस तरफ dEl डैश, सेम लेंथ का लिया, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, सेम आएगा, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, मीन मैग्नीट्यूड इज सेम. आपने एक और ले लिया इधर dE डैश. अब आपने इसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, ये भी थीटा था, तो dE डैश कॉस थीटा आ गया इधर, और इधर क्या आ गया dE साइन थीटा. दिख रहा है dE साइन थीटा और dE डैश साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करें, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है dE और dE डैश का. तो व्हाट इज़ लेफ्ट? dE कॉस थीटा. तो dE कॉस थीटा को ही अगर आपने पूरी रिंग की वजह से निकालना है तो आप क्या करोगे? dE कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे, क्योंकि dE साइन थीटा कॉम्पोनेंट दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है. So what is left? dE cos theta is left. Now what is dE? 1 by 4 pi epsilon naught lambda dl x square plus r square into cos theta. Now how to find out the cos theta? This was a triangle.
This was the triangle, this was R. You took the DL over here. This was point P, this was center O. Okay. How to find out the cos theta from here? Cos theta is base upon hypotenuse. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. So x upon r, x upon r. R we know, r square was x square plus a square. So r is what? Root of x square plus a square. So put the value of r, x square plus a square. Now put this value of cos theta here in equation number star. So what will come? Electric field intensity is 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, lambda dl, x square plus a square, x square plus a square into cos theta will be x upon root a square plus x square. Now solve this. Lambda into x will come out. 4 pi epsilon naught will come out. See this. This is x square plus a square की पावर 1 और यहाँ पर क्या होगा? x square plus a square की पावर 1 by 2. So total power will be 3 by 2. x square plus a square की पावर 1 and this was x square plus a square की पावर 1 by 2 अंडर रूट इट वॉज. तो क्या पावर बन जाएगी? बाहर क्या आ जाएगा? x square plus a square की पावर 3 by 2. अंदर क्या रह गया? सिर्फ dl ओवर अ होल रिंग. ना dl क्या था? देखो ये छोटा सा एलिमेंट लिया था आपने रिंग के ऊपर, आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था यहाँ पर dl. अगर मैं पूरी रिंग को इंटीग्रेट करूँगी dl पे तो क्या आ जाएगा? दिस इज़ व्हाट? द सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? एज ए इज़ द रेडियस, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई ए. सो आई विल रिप्लेस दिस इंटीग्रल ऑफ dl विद 2 पाई ए. तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? 2 पाई. ना सी एज चार्ज वॉज, पूरी रिंग के ऊपर कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था और वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था? 2 पाई ए पे डिस्ट्रीब्यूटेड था. तो लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा एज पर द डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन चार्ज बाय लेंथ. चार्ज वॉज क्यू, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रिंग? 2 पाई ए. तो यहाँ से लैम्डा इंटू 2 पाई ए निकालेंगे क्योंकि यहाँ लैम्डा इंटू 2 पाई ए आपको निकालना है. तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए क्या आ जाएगा? क्यू. पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इंटू 2 पाई ए क्यू. सो इट विल बी क्यू एक्स. इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया? क्यू. तो क्या रह जाएगा? क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 by 2. नेट इंटेंसिटी कहाँ निकलेगी? आप देखो इसमें डायग्राम में ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे थे, सिर्फ कितनी रह रही थी? इधर रह रही थी सिर्फ कॉस थीटा वाली डायरेक्शन. तो वो कॉस थीटा वाली डायरेक्शन क्या थी? इट वाज द एक्सिस ऑफ द रिंग. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? along the axis of the ring. Now some special cases are there. Suppose x is very very large than a. That means you want to find out the electric field intensity at a very large distance, this was x, at a very large distance from the center of. Means अगर आपके पास ये रिंग है तो P पॉइंट इस सेंटर से बहुत दूर है. तो उस केस में क्या होगा? देखो अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत ज़्यादा है तो क्या आप ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हो? यस वी कैन नेगलेक्ट. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? एक्स स्क्वायर पुट करो. क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट किया? एक्स स्क्वायर. पावर क्या थी? 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स और यहाँ के बच गया 2 से 2 कट गया तो एक्स की क्यू बच गया. Now this will be cancelled out. What is left? X square. So what is left? क्या रह जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर. ये क्या था? अभी हमने किया था पिछले टॉपिक में. इट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मीन्स अगर आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे निकालना चाहते हो जो कि इस रिंग से बहुत दूरी पर है तो ये रिंग अपने आप में क्या बन जाएगी? एक पॉइंट चार्ज बन जाएगी. ये पूरा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी अगर जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो बहुत ही दूर है. ना सेकेंड केस इज इफ़ P लाइज एट द सेंटर. मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो इस रिंग के सेंटर पर, इस रिंग के सेंटर पर. ये डिस्टेंस कितना था? x. अगर P x पर O पर आ गया तो x कितना हो गया? 0. अगर P को ही मैंने यहाँ पर ले लिया, O पर ले लिया तो डिस्टेंस OP क्या था? x था. अब P O पे या तो x कितना हो गया? 0. और अगर x 0 है तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? क्यू एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. और अगर x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0. किसी भी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? हमें मैक्सिमा की कंडीशन पता है, मैथ्स में हमने पढ़ी हुई है कि किसी भी क्वांटिटी का अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव 0 पुट कर देते हैं. नाउ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जहाँ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ना डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की वैल्यू पुट करो, क्यू एक्स 4πε0 एक्स स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इसको जीरो पुट करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसा करो, क्यू बाय 4πε0 को बाहर ले जाओ, बाहर ले लिया, व्हाट इज़ लेफ्ट, एक्स बाय इसकी पावर ऊपर ले जाओ -3/2 की ज़ीरो। नाउ यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये पावर नीचे आ गई और एक पावर ऊपर कम हो गई, -3/2 नीचे आया, ऊपर एक पावर कम होगी -3/2 -1 -5/2 बन गया, इंटू अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, पुट इट 0। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी a√2। देखो अंदर क्या बचाते हैं यहाँ पर -3x² एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर -3/2। हमने क्या किया, अब दिस इज द प्रोडक्ट इज जीरो, प्रोडक्ट जीरो है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो मीन्स अंदर ब्रैकेट वाली टर्म जीरो है, ब्रैकेट वाली टर्म को जीरो कर दिया। अब क्या करो, इसको जीरो कर दो तो दिस विल गो ऑपोजिट साइड, ये जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, -3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, ये माइनस बन जाएगा, माइनस साइन विल बी कैंसल्ड आउट, की पावर -3/2 है तो अपॉन में 3/2 लिख सकते हैं, इसको मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया, माइनस साइन कैंसिल हो गया, इधर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 और इधर क्या 3/2, तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पावर 1 रह जाएगी, तो 3x², इसको कटिंग करने पर यहाँ पावर 1 रह गई, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 रह गई इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x² एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेक टू अनदर वे, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे +-a/2, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू दोनों तरफ हो सकती है, नेगेटिव में -a/√2 दिखाया मैंने ग्राफ कर्व से, और पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है a/√2। थैंक यू।